expansion of determinant using row or column. That means we can expand this determinant by using any row or any column. Okay, see this, 1 minute, we shall see this. Now definition and the expansion of determinant, see this, up till we have studied this. Expansion of a determinant using any row or any column, whatever may be, that is the properties of determinant. These are the next part which we have to study. In the last lecture we have seen that the definition of determinant of order 3. Now how to solve the determinant of order 3, how to expand the determinant of order 3, which we have seen in the last but one lecture. This is the method for finding the minor and cofactors of the element. What is the definition of the minor? The minor of an element Aij is the determinant by deleting ith row and jth column. The minor Aij is denoted by capital Mij, and which is here. If D is equals to A11, A12, E3 by 3 का अगर डिटर्मिनेंट होता है तो उसका जो माइनर होता है, that is the minor of Aij which is equals to capital Mij, म्हणजेच A11 जो एलिमेंट असतो तो A11 चा एलिमेंटचा रो आणि कॉलम डिलीट करा. राहिलेल्या 4 डिटर्मिनंटचं सोल्युशन पाहिलेलं आहे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी होमवर्क सुद्धा करून चांगल्या पद्धतीने पाठवलेला आहे. होमवर्क सुद्धा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने केलेला आहे. नेक्स्ट ऑल्सो वी हॅव डिफाईन, या ठिकाणी आपण डिफाईन केलेलं आहे. व्हॉट इज द डिफाइंड? नेक्स्ट, द कोफॅक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij which is equals to, which is denoted by Cij and which is defined as Cij is equals to -1 raised to I plus j into Mij. This is the definition for cofactor of an element. Now today we shall discuss the expansion of a determinant by using, see this, expansion of a determinant using any row or column. Write down heading, expansion of determinant by using any row or column. Suppose A is equals to given determinant, okay, or we can write as a, in place of A we can put as a D. Suppose D is equals to any determinant of order A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Okay, this is the determinant of order 3 by 3. अगर आप डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो आपको पता है कि अगर फर्स्ट रो के आधार पे हम जनरली डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं, लेकिन वी कैन टेक एनी रो और एनी कॉलम. सी दिस केस फर्स्ट, expansion of determinant suppose if we consider first row, using फर्स्ट रो, अभी आपको फर्स्ट रो के आधार पे डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करना है. तो फर्स्ट रो के एलिमेंट कौन से होते हैं? देखो A11, A12, A13, इन्हीं को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है. देयरफॉर D इज इक्वल्स टू A11 इंटू C11. सी दिस फार्मूला, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 and third formula, that is third member or third term,
A13 into C13. Use this formula for the determinant by expansion of determinant by using first row. Secondly, we can expand this determinant second row. How to expand this determinant by using second row? यानी कि अभी देखिए second row कौन सा होता है, A21, A22, A23. अभी second row के एलिमेंट आप ले सकते हैं और उन्हीं के साथ प्रोडक्ट में उनका कोफैक्टर लेना है. So we can expand this determinant. D is equals to A21 into C21 प्लस A22 into C22, उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है. अगर A22 हम एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं तो उन्हीं का कोफैक्टर C22 होता है. A23 into C23. इसी तरह से हमें डिटरमिनेंट का इसी तरह से ले. सेम आप थर्ड रो से भी ले सकते हैं. दैट इज बाय यूजिंग थर्ड रो. कैपिटल डी इज इक्वल्स टू, आने वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होते, या तो आप फर्स्ट यूज करो, या तो आप सेकंड रो यूज करो, या तो आप थर्ड रो यूज करो. थर्ड रो के एलिमेंट कौन से है देखिए, A31, A32 एंड A33. सो A31 मल्टीप्लाइड बाय C31 प्लस A32 मल्टीप्लाई बाय C32 प्लस A33 मल्टीप्लाई बाय C33. इसी तरह से आप एनी रो और एनी कॉलम का यूज करके डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कर सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, अगर आपको कॉलम का लेना है फोर्थ, ये रो का यूज कर दिया आपने, अभी आपको कॉलम का यूज करना है तो आप कैसा कर सकते हैं, देखो फोर्थ बाय कॉलम फर्स्ट. देखिए अभी कॉलम फर्स्ट के कौन से एलिमेंट है, कॉलम फर्स्ट के A11, A21, A31. देखिए A11, A21, A31. So we can take this column also first, column first, यानी कि D is equals to A11 और इसका कोफैक्टर C11. सेकंड A21 into C21. थर्ड A31 into C31. यानी कि आपको जिस कॉलम का यूज करके एक्सपेंशन करना है उसी कॉलम के एलिमेंट लेना है. अभी फर्स्ट कॉलम बोले तो फर्स्ट कॉलम के कौन से एलिमेंट है, देखो A11, A21. कॉलम यानी वर्टिकल लाइन, यहाँ पे फर्स्ट वर्टिकल लाइन कौन सी है, A11, A21, A31. अभी इसी वर्टिकल लाइन से एक्सपेंशन ले सकते हैं. अभी सेकंड कॉलम से भी ले सकते हैं, थर्ड कॉलम से भी. आई शैल टेक थर्ड कॉलम. फिफ्थ सपोज बाय कॉलम थर्ड D इज इक्वल्स टू, अभी थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स कौन से देखिए आप, A13, A23 एंड A33. A13 ये हो गया फिक्स, देन इसका कोफैक्टर C13. A23 देन इसका कोफैक्टर C23 एंड A33 देन इसी का कोफैक्टर हमें लेना है C33. ओके, तो हम इसी तरह से हर एक रो के और हर एक कॉलम का यूज करके एक्सपेंशन ले सकते हैं. हैव यू रिटन दिस? अगर आप मेरे साथ में लिख रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, ये लिख लीजिए, आपका हुआ तो ठीक है. अगर मेरे साथ में आप नहीं लिख रहे हैं तो बाद में लिख के लो, मैं थोड़ा स्पीड से प्रॉब्लम लेता हूं फिर. ओके, अगर आपको समझ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ स्टेप्स नहीं समझ आ रही तो आप पूछ सकते हैं. एक्चुअली दिस इज द प्रोसेस. यहाँ पे ये जो प्रोसेस है खाली ये फॉर्मूले है, ये खाली फॉर्मूले है. अभी इसी आधार पे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एक्सपेंशन लेना है. ठीक है, सो वी कैन टेक दिस प्रॉब्लम्स.
problem. Evaluate capital A is equals to, suppose that determinant is 2 minus 3 5 6 0 4 and third row 1 5 minus 7. Okay, find the minors and cofactors of second row of the determinant. Find the minors and cofactors of second row of the determinant. Also verify first, what we have to verify? Minus A21 into M21 plus A22 into M22 minus A23 into M23 is equals to value of this determinant A. Similarly, second, what we have to prove? A21 into C21 plus A22 into C22 plus A23 into C23 which is equals to also the value of determinant A. यानी कि दोनों कंडीशन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आती है, ये हमें प्रूव करना है. देखो इसका मतलब क्या करना है, देखो आपको दोनों कंडीशन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आती है, ये प्रूव करना है. ओके, नाउ हाउ टू प्रूव दिस हियर, हाउ टू सॉल्व दिस. नाउ चेक दिस, वी शैल से. हाँ, तो आंसर, लेट capital A is equals to, what are those elements? 2 minus 3 5 6 0 4 1 5 minus 7 which is equals to A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. Okay, now here we have to solve. अभी आपको क्या करना है, सेकंड रो के माइनर और फाइंड द अभी इसका मतलब पहले ये इवैल्यूएट करना है, ये डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है. तो डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट कीजिए. नाउ A is equals to determinant of A is equals to, what is the value of A? सीरीज 2 into, सबसे पहले क्या लेना है 2, बाद में दूसरा पार्ट करेंगे. फर्स्ट आपको इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करो. 2 into, अगर आप फर्स्ट 2 लेते हैं, ये 2 ले लिए, इसका सॉल्यूशन के आधार पे उसका कॉलम और रो डिलीट कीजिए, इसका कॉलम और इसका रो डिलीट कीजिए. जो 4 एलिमेंट्स रहते हैं उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सब्ट्रैक्शन 0 4 5 माइनस 7. सेकंड एलिमेंट क्या होता है, देखो सेकंड एलिमेंट फिर से -3 है, तो कभी भी फर्स्ट एलिमेंट प्लस होता है, सेकंड माइनस, थर्ड प्लस. ये पोजीशन के आधार पे हम ले सकते हैं. तो अभी हमें सेकंड एलिमेंट लेना है. सेकंड एलिमेंट कैसे लेते हैं, देखो okay, now we shall take the second element. What is that element here? Minus of -3
ये हो गया -3 ले लिए। अभी क्या करना है, इसका रो और इसी का कॉलम डिलीट करना है और सॉल्व करना है। तो 4 एलिमेंट रहते हैं, कौन से, 6 4 1 -7। अभी डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन कैसा लेना है, हाउ टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, वी हैव सीन प्रीवियस वीडियो। Actually in the third lecture we have seen how to find out the determinant of third order. If you don't know this method for the solution of a determinant, then you can check lecture number 3 or third number video. Okay, next fourth, अभी third element जो अभी लेना है वो है see this. Okay, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो फिफ्थ लेना है 5, ये थर्ड एलिमेंट लेना है 5। तो उसी का रो और उसी का कॉलम डिलीट कर दो। कौन से 4 एलिमेंट रहते हैं, 6 0 1 5। नाउ सॉल्व दिस, 2 इंटू 0 -20। अभी इसका क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, यू नो दैट हाउ टू सॉल्व द 2/2 डिटरमिनेंट। 2/2 डिटरमिनेंट में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ता है, तिरकस गुणाकाराची वजाबाकी। मग हे तिरकस गुणाकाराची वजाबाकी घ्या, मायनस मायनस प्लस 3 इंटू परत 6 इंटू -7 -42 -4 प्लस 5 इंटू 30 -1 that is 2 into -20, 3 into -46 plus 5 into 30 that is equals to -40। हाँ, जे काही विद्यार्थी ऑनलाईन आहेत त्यांनी व्यवस्थित लक्ष देत चला, कुठं काय अडचण यायला लागली हे तुम्ही विचारत चला। जर कॅल्क्युलेशन मध्ये बऱ्याच वेळा माझं तुमच्याकडे बोलत बोलत इकडे चुका होऊ शकतात, तुमच्याकडे लक्ष देत तिकडे पण बोर्डवर चुका होत असतात, तर तुम्ही काही चेक करत चला, चुकलं की सांगत चला। मायनस 18 138 प्लस 150। अभी देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है, -178 माइनस प्लस 150 बराबर है क्या, देखिए इसका आंसर आता है -28। देखिए बराबर है क्या, -28। शेवड्याकास पाहिजे 28 29 पाहिजे म्हणे, कुठं 29 रे, पहा 29। ओके, व्हेरी गुड, 29 पाहिजे, व्हेरी गुड। आता 5 नम 45 किती होतं पहा, 45 5 दुनी 10 10 4 14 बरोबर आहे का रे, किती येतं पहा, सोल्युशन करायचं म्हणजे इथं आन्सर येईल पहा। 1 मिनिट, हाँ ओके बरोबर है का, चेक करा परत एकदा। 145 यानी कि आंसर कितना आता है देख लीजिए आप। तो यहां पे 45 यानी कि 28 प्लस 5 यानी कि 33 बराबर है क्या। आप देखिए कितना आता है 150। हा इथं 0 येतं रे, बरोबर आहे, हा 0 होतो। 1 मिनिट, हे बरोबर आहे रे। हे 29 येत नाही तर 0 असतं। 30 बरोबर आहे, 150 बरोबर आहे। ओके, इट इज 150 बरोबर आहे आणि याचा आन्सर येतं -28। हे 30 6 पंचेतीस 6 into 5 मीन्स 30, 30 - 0 मीन्स ओके, इट इज ओके। आता काय करायचं पहा, सेकंड, फाइंड द माइनर साइन कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो। अभी सेकंड रो के माइनर साइन कोफैक्टर्स हमें निकालना है। सेकंड रो के माइनर साइन कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, देखो ओके, माइनर साइन कोफैक्टर, अभी सेकंड रो के माइनर साइन कोफैक्टर निकालना है।
यानी कि सेकंड रो बोले तो कौन सा है वो, ये देखो इस एलिमेंट के माइनर साइन को फैक्टर्स निकालना है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2 1 1 तो हम निकाल सकते हैं सेकंड में फर्स्ट माइनर ऑफ ये 2 1 which is denoted by m21 and determinant by deleting its ith row and jth column. Very good. हाँ बरोबर है. यस प्रतीक्षित आन्सर कुणी प्रतीक्षित साकर्डेनं आन्सर करेक्ट काढलेला आहे. वैष्णवी दमकवारनं करेक्ट काढलेला आहे. शिवदास ढवळे व्हेरी गुड. शिवदास ढवळेनं पण आन्सर करेक्ट काढलेला आहे सर्वात अगोदर. ओके बाकी ठीक आहे. तर हा आता सेकंड रोचं आपल्याला माइनर्स आणि को फॅक्टर काढायचे. सेकंड रो मध्ये एलिमेंट कुठले कुठले आहेत पहा. चेक दिस A21 A22 A23. अभी ये सेकंड रो के सभी माइनर्स एंड को फैक्टर्स निकालना है. तो A21 का माइनर फर्स्ट निकाल सकते हैं. तो A21 के रो ये देखो A21 का ये एलिमेंट है, इसका रो और इसी का कॉलम डिलीट करो वो माइनर मिल जाएगा. तो -3 5 5 -7 -3 5 5 -7. Now solve this. That is 21 -25. ओके म्हणजेच इथं किती येणार पहा. 21 -25 मीन्स m21 इज इक्वल्स टू -4. अभी इसका को फैक्टर निकालना है. को फैक्टर C21 is equals to, what is the formula for cofactor C21? Very good. शिवदास ढवळे -1 raised to 2 + 1 into m21 यानी कि -1 raised to 3 into m21 बोले तो क्या होता है इसका सॉल्यूशन -4 दैट इज इक्वल्स टू ये हो गया 4. बराबर है क्या ये सभी का. वेरी गुड. वैष्णविदम कोंडवार वेरी गुड. देन वी शैल डिस्कस द नेक्स्ट हाउ टू सॉल्व दिस हियर. अभी ये हो गया फर्स्ट. देन वी शैल टेक द को फैक्टर एंड माइनर ऑफ A22. अभी यहां पे A22 का को फैक्टर और माइनर लेना है. तो हम क्या कर सकते हैं उसको डिलीट कर सकते हैं. ये देखो डिलीट कर दो इसको भी डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो. अभी लेना किसका है A22 का, यानी कि वी हैव टू टेक दिस एलिमेंट 0. इसका रो डिलीट करो, इसका कॉलम डिलीट करो. 2 5 1 -7 सेकंड माइनर ऑफ A22 विच इज m22. अभी मैं डायरेक्ट निकालता हूं डिटरमिनेंट लिखने की बात. ठीक है लिखता हूं डिटरमिनेंट. क्या आता है देखो 2 5 1 -7 2 5 1 -7 that is a -14 -5 that is equals to -19. Then cofactor C22 is equals to -1 raised to 2 + 2 into m22 यानी कि 1 into -19 which is equals to -19. हाँ संकेत नरुटे व्हेरी गुड. यावेळेस संकेत नरुटेनं फर्स्ट आन्सर दिला 5 C22 m22 चा. व्हेरी गुड संकेत. शिवदास ढवळे तू पण दिला व्हेरी गुड. आता थर्ड ऍक्च्युअली कॅल्क्युलेट दिस थर्ड एलिमेंट. व्हॉट इज दॅट थर्ड. वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द मायनर अँड को फॅक्टर. आता इथं मायनर आणि को फॅक्टर काढायचे. संदेश वय घेऊन करते मायनस आणि को फॅक्टर काढायचे. मायनर आणि को फॅक्टर काढत असताना कुठले आहेत पहा मायनर आणि को फॅक्टर पहा. कॅल्क्युलेट करा. थर्ड म्हणजे कुठला एलिमेंट A33. यू वांट टू कॅल्क्युलेट A33 यानी कि सो रिवाइज दिस. ओके ये डिलीट कर दो सभी. ये भी डिलीट कर दो, इसकी भी जरूरत नहीं है. तू कर सॉल्व दिस. हा आता या ठिकाणी थर्डचं कॅल्क्युलेट करा. हाउ टू कैलकुलेट दिस थर्ड. माइनर ऑफ A33 यानी कि कौन सा एलिमेंट लेना है आपको 4 लेना है. तो 4 का रो और 4 का कॉलम डिलीट करो. 4 का रो और 4 का कॉलम डिलीट करने के बाद आपको क्या मिलता है आंसर 2 - 3 1 5. ओके. थर्ड माइनर ऑफ
ये 23 विच इज डिनोटेड बाय M23, अभी मैं डायरेक्ट लेता हूं, ये डिलीट कर दे, रो 4 का एलिमेंट डिलीट कर दे, तो तिरकस गुणाकाराची वजाबाकी म्हणजे 2 into 5 means 10 minus minus 3, 10 minus minus 3 is equals to 13. बरोबर आहे का? 13. व्हेरी गुड. वैष्णवी कानडे, वैष्णवी दमकोंडवार, संकेत नरुटे, छान. शिवदास ढवळे, तुझं कॉलेज कुठलं आहे रे? तू कुठं राहतो? कुठला आहे शिवदास ढवळे? व्हेरी गुड. चांगल्या पद्धतीने आन्सर द्यायला लागला, फास्ट द्यायला लागला. सांग तू तुझं काय, कुठलं कॉलेज आहे? शिवदास ढवळे. प्रतीक्षित सरकडे, तू पण सांग. So we can solve this. Now C22 is equals to, we can write direct -1 raised to 2 plus 2 into M22, यानी कि इसका मतलब होता है -1 का 4 पावर इंटू 13, यानी कि आंसर आता है 13. C22 की वैल्यू हो गई 13. अभी क्या करना है देखो, नाउ अभी ये वेरीफाई करना है, माइनस कौन सी टर्म वेरीफाई करना है? सीरीज. ये देखो ये टर्म वेरीफाई करना है, इसके एलएचएस में लिखना है. एलएचएस में लिखना है, क्या लिखना है? वैल्यू पुटअप करना है, ए की वैल्यू आती है क्या देखना है. तो एलएचएस राइट डाउन दैट. नाउ फर्स्ट एलएचएस यू कैन राइट एलएचएस. अभी इसका एलएचएस लिखो, माइनस ए इंटू M21 माइनस A21 इंटू M21 प्लस A22 इंटू M22 माइनस A23 इंटू M23. ओके, इसी तरह से आपको सॉल्यूशन लेना है. अभी वैल्यू पुटअप करो, माइनस IGT. A21 की वैल्यू कितनी है देखो, A21 यानी कि 6 है. देखो A21 यानी कि 6 माइनस 6 इंटू M21 विच वी हैव कैलकुलेटेड. अभी यहां पे आपने M21 कैलकुलेट किया है, कितना है देखो M21 -4 है. देखो -4, तो पुटअप करो -4 प्लस वैल्यू ऑफ A22. अभी A22 की वैल्यू कितने है प्रॉब्लम में देखिए, 0 है. देखो A22 यानी कि 0, और उसका M22 देखो 0 इंटू -19 माइनस A23 कितना है? A23 की वैल्यू है 4 इंटू इसका कोफैक्टर M23 है 13, 24 माइनस 52 यानी कि इसका मतलब आता है -28 विच इज इक्वल्स टू ये यानी कि इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू है. देखो ये देखो ये की वैल्यू यहां पे 28 है, विच इज इक्वल्स टू RHS, विच इज इक्वल्स टू RHS. therefore LHS equals to RHS. hence proved first result. ये देखो इसी तरह से फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया. अभी हमें सेकंड रिजल्ट लेना आहे. नंबर सेकंड पहा, जेव्हा एखाद्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काढत असताना तुम्हाला एक टेक्निक सांगतो. मायनर वरनं जेव्हा काढतात, मी तुम्हाला कोफॅक्टरचे फॉर्म्युले दिलेले आहेत ऑलरेडी. आय हॅव गिवन द फॉर्म्युले रिगार्डिंग कोफॅक्टर. A21 into C21, A22 into C22, A23 into C23. These are the formulae for the cofactor. अगर आपको माइनर से निकालना है तो ऑड टर्म है तो निगेटिव लेना है, यानी कि सीरीज ऑड टर्म किसे कहते हैं? देखो 3-1, ये 2-1 मीन्स 2 + 1 यानी कि 3 यानी ऑड हो गई. ऑड हुई तो उसको माइनस लेना पड़ता है. ऑड टर्म है तो माइनस लेना पड़ता है. अभी सेकंड टर्म डिस्कस करो. A22 2 + 2 यानी कि 4, इवन टर्म है इसलिए उसको साइन हमने प्लस ले लिया है. अभी थर्ड टर्म चेक कीजिए. A23 देखो A23. अभी A23 यानी कि 2 + 3 यानी कि 5 कैसा है? ऑड है. तो उसी के लिए उसका सिंबल क्या आता है? माइनस आता है.
अगर माइनर से आपको निकालना है वैल्यू, किसी ही कौन से ही रो ले लो, अगर माइनर से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है तो उसका पोजीशन साइन देखना है। अगर ऑड पोजीशन साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया। यहां पे माइनस काय को लिया, आपको लगता होगा यहां पे माइनस काय को लिया है, आपको पता होना चाहिए यहां माइनस काय को आया है। तो माइनस इसलिए आया, ये जो पोजीशन है इसकी 2 + 1 यानी कि 3 ऑड पोजीशन है। ऑड पोजीशन का साइन कभी भी माइनस होता है। ये देखो हमने यहां पे काय को लिया माइनस, ये जो देखो मिडल टर्म देखो -3 है, यहां पे आपको दिखाई देगा सीधे आंसर में ये -3 है। ये माइनस काय को लिया, ये माइनस, सी दिस माइनस इज पोजीशन, याची जी पोजीशन असते 3 ची, ऍक्च्युअली ये 2 1 2 + 1 म्हणजे 3 आहे, ऑड पोजीशन असल्यामुळे हा मायनस आलेला आहे। म्हणजे लक्षात ठेवा, जेव्हा तुम्हाला डायरेक्ट मायनर वरनं डिटर्मिनंट सोडवायचा असतो तेव्हा त्याची पोजीशन पाहायची। हे मायनस का आलं, तर इथं 2 + 1 म्हणजे 3 त्याची ऑड पोजीशन आहे। आता थर्ड टर्म बघा, यातलीच थर्ड टर्म बघा, 8 2 3 म्हणजे 2 + 3 5 आहे, 5 म्हणजे ऑड टर्म आहे म्हणून निगेटिव्ह। म्हणजे कधीही डिटर्मिनंट सॉल्व करत असताना तुम्ही मायनरच्या सहाय्याने जर डिटर्मिनंट सोडवत असेल, मायनरच्या सहाय्याने जर डिटर्मिनंट सोडवत असेल तर त्याची पोझिशन ऑड असेल तर ऑड घ्या, इव्हन असेल तर इव्हन पद्धतीने सॉल्व करा। ओके, तर अशा पद्धतीने आपण हे आन्सर्स काढू शकतो, त्या पद्धतीने सॉल्व करू शकतो। ओके, नाउ सी दिस नेक्स्ट। हाँ, अभी हमें सेकंड रिजल्ट प्रूव करना है, उसकी LHS हम लेते हैं। व्हाट इज दैट LHS? सी दिस LHS। व्हाट इज दैट LHS? A21 into C21 plus A22 into C22 plus A23 into C23। अभी ये डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन को फैक्टर के आधार पे है। यहाँ पे C21 यानी कि को फैक्टर है, को फैक्टर में ऑलरेडी साइन पोजीशन होती है -1 raised to i + j, इसका मतलब उसकी पोजीशन साइन ऑलरेडी को फैक्टर में आती है, इसलिए यहाँ पे माइनस लेने की जरूरत नहीं है। अभी ये देखो को फैक्टर कहाँ है, 2 + 1 ऑड पोजीशन है, फिर भी ये साइन को फैक्टर निकालते वक्त ले लिया है, इसका पोजीशन कंसीडर किया हुआ है। ओके, पुट अप द वैल्यू। यहाँ पे को फैक्टर के लिए माइनस प्लस कुछ यहाँ नहीं लेना है डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए। अभी वैल्यू पुट अप करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A21 मीन्स 6 × 4, A22 की वैल्यू आते हैं 0 × -19 प्लस A31 की कितने है देखो, A31 A23 की वैल्यू कितने है 4 × 13 प्लस 4 × 13 plus 4 × 13, so you can calculate this। -13 है, देखो को फैक्टर की वैल्यू कितनी है, देखो ये देखो को फैक्टर की वैल्यू -13 है। C23 देखो, C23 हाँ इथं चुकली पहा, हे C23 देखो, C23 यानी कि 5 है, 5 -13 आते। सो इथं पहा रे, इथं करेक्शन करून घ्या, -13 येतं C23, कारण 2 + 3 म्हणजे 5 -1 raised to -13 येतं, दॅट इज देयर इज अ -13, दॅट इज 24 - 52 यानी कि कितना आता है देखो -21, विच इज इक्वल्स टू ए, विच इज इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेन्स प्रूव्ड। अशा पद्धतीने हे आपलं सोल्युशन झालेलं आहे। ओके, आता सेकंड प्रॉब्लेम, वी शॅल सॉल्व द सेकंड प्रॉब्लेम। व्हाट इज दॅट सेकंड प्रॉब्लेम? वी शॅल डिस्कस। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनंट expanding along third column, expanding along third column,
Suppose what is the determinants here? We have given that determinant is minus 1, 1, 2, minus 2, 3, minus 4, minus 3, 4, 0. अभी इसी डिटरमिनेंट की वैल्यू थर्ड कॉलम के आधार पे लेना है, यानी कि ये थर्ड कॉलम के आधार पे लेना है. ओके, सो लेट suppose we consider D is equals to determinant minus 1, 1, 2. अभी second row है minus 2, 3, minus 4 and third element है minus 3, 4, 0, which is considered as A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ओके, अभी हमें क्या करना है? थर्ड कॉलम के आधार पे डिटर्मिनेंट लेना है. थर्ड कॉलम के आधार पे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है. तो ओनली थर्ड कॉलम फर्स्ट, द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम. हाँ, जो भी बच्चे ऑनलाइन है बताइए मुझे थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स कौन से है? थर्ड रो नाही, रो म्हणजे आडवी लाईन असते, कॉलम म्हणजे उभी लाईन. थर्ड कॉलमचे एलिमेंट कुठले कुठले आहेत? तर ते आहेत समजा A13, A23, A33, यानी कि इस थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के आधार पे, ये देखो ये थर्ड कॉलम के एलिमेंट के आधार पे आपको लेना है. सी दिस, वी हैव टू टेक द all elements along the third column, यानी कि so third column यानी कि first element है, तो यहां पे first the minor of third column के element के minor and cofactor निकाल दीजिए. the minor of A13 which is denoted by M13, यानी कि उसका रो और कॉलम डिलीट करो. 13 यानी कि ये है, तो इसका रो और इसका कॉलम डिलीट करो तो क्या आता है? वेरी गुड, संकेत नरूटे 2 माइनस 4 और 0 है थर्ड कॉलम पे एलिमेंट. आकाश शेवाड़े, वेरी गुड. तो डिटरमिनेंट कौन सा है? माइनस 2, 3, माइनस 3, 4. तो अभी इसका सॉल्यूशन निकाल दीजिए. माइनस 8 माइनस माइनस 9, दैट इज अ माइनस 8 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 1. अभी इसका कोफैक्टर C13, उसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है. माइनस 1 रेज टू 1 प्लस 3 इंटू M13, यानी कि 1 इंटू 1, इसका मतलब आ गया 1. कोफैक्टर की कितनी वैल्यू आई? देखो यहां पे कोफैक्टर की वैल्यू 1 आ गई है. बराबर है क्या? हाँ शिवदास ढोले, वेरी गुड. ठीक है, अभी हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं. कौन सा एलिमेंट है दूसरा? देखो हाँ, ये हो गया. अभी दूसरा एलिमेंट लेना है. दूसरा एलिमेंट कौन सा है? ये माइनस 4 है. कौन सा? A23. कोफैक्टर ऑफ minor of A23 which is denoted by M23 which is equals to determinant of, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, उसका रो और उसी का कॉलम डिलीट करो. माइनस 1 1 माइनस 3 4, माइनस 1 1 माइनस 3 4, दैट इज इक्वल्स टू M23 इज इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 3, यानी कि माइनस 4 प्लस 3, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1. अगेन C23 यानी कि माइनस 1 रेज टू 2 प्लस 3 इंटू M23, माइनस 1 इंटू माइनस 1 यानी कि प्लस 1. बराबर है क्या? प्लस 1. वेरी गुड. वैष्णवी दमकौंडार, शिवदास ढवळे, प्रतीक्षित सरकडे, परीक्षित सरकडे. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ ठीक है, बराबर है क्या? देखो अभी ये बराबर है.
अभी थर्ड एलिमेंट का निकालना है। अभी थर्ड एलिमेंट कौन सा है, देखो आप, थर्ड एलिमेंट यानी कि 4, थर्ड एलिमेंट यानी 0। अभी 0 का निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये डिलीट करो, ये भी डिलीट करते हैं। अभी थर्ड एलिमेंट की तरफ आते हैं हम। ये देखो ये है, ये 3 का, तो उसका रो उसका कॉलम डिलीट करो। द माइनर ऑफ ये 3 विच इज इक्वल्स टू M33 विच इज इक्वल्स टू, यू कैन टेक डायरेक्ट नाउ -3। अभी जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सब्ट्रैक्शन यहीं पे कर दो, डायरेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस ज्यादा होगी वैसे वैसे आप डायरेक्ट स्टेप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला लिखना जरूरी है। बाकी कैलकुलेशन की स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसी को 2/2 में डिटरमिनेंट में लिखना ही कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस होनी पड़ती है। अगर अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस हुई हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो -1 into 3 यानी कि -3 + 2, वी कैन टेक डायरेक्ट -3 + 2 यानी कि -1। अगेन C33 इज इक्वल्स टू -133 13 + 3 into M33। इसका मतलब होता है 1 into -1 यानी कि -1। वेरी गुड। यम -1 आता है, ओके बराबर है। अब ये फॉर्मूला यूज करो। नाउ वी हैव, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग थर्ड कॉलम। काय फॉर्म्युला मग आहे, D इज इक्वल्स टू सी दिस, आय हॅव गिवन फॉर्म्युले, टोटल फॉर्म्युले दिलेले आहेत। अगर आपको थर्ड कॉलम से लेना है तो ये देखो, ये थर्ड कॉलम का ये फॉर्मूला यूज करना है थर्ड कॉलम के लिए। थर्ड कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। मींस ये 13 इंटू C13, ये 23 इंटू C23, ये 33 इंटू C33। सो पुटअप करो। अभी एलिमेंट्स कौन से हैं, देखो 2, थर्ड कॉलम के एलिमेंट देखो 2 इंटू उसी का माइनर कितना है, देखो उसी का माइनर आता है 1 +4 इंटू थर्ड एलिमेंट कौन सा है, देखो -4 1 मिनट, -4 इंटू, देखो -4 इंटू C23 की क्या वैल्यू है, देखो C23 यानी कि 1 प्लस ये 33 का एलिमेंट कौन सा है, देखो ये 33 0 इंटू C33 -1, इसकी वैल्यू आती है 2 - 4 यानी कि -2। ये देखो ये हो गया सॉल्यूशन। कौन से एलिमेंट से लेना है आपको, थर्ड कॉलम से लेना है, थर्ड कॉलम से। डिटर्मिनेंट एलिमेंट, द एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम आर दिस। मग थर्ड कॉलम न विचारल्यामुळे थर्ड कॉलमचे एलिमेंट घ्या, त्याचे कोफॅक्टर मायनर काढा आणि थर्ड कॉलमचा फॉर्म्युला वापरा आणि सोल्युशन काढा। ओके, तर होमवर्क साठी मी प्रॉब्लेम देतो, तुम्ही ते सॉल्व करायचे। लिहा होमवर्क, फाइंड द डिटर्मिनेंट (2 1 4 2 2 -3 1 5 0). First, using column first. Second, using column second. ओके, हा फर्स्ट प्रॉब्लेम झाला होमवर्कचा। नाउ वी शॅल डिस्कस सेकंड प्रॉब्लेम होमवर्क।
see this determinant of 2 3 5 4 1 2 0 1 2. Find determinant by using ये फर्स्ट सेकंड रो और दूसरा करना है थर्ड रो, और तीसरा मैं होमवर्क देता हूं, थर्ड होमवर्क, इफ d इज इक्वल्स टू 102 25 minus 1 0 1 1, find value of d. Second, verify A11 C11 plus A22 C22 plus A33 C33 is equals to 0. Third, verify A21 C21 A22 C22 A32 C32 is equals to इधर 0 नहीं, डिटर्मिनेंट D which is equals to D. अभी इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क के लिए करना है, होमवर्क करके हमारे व्हाट्सएप पे सभी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे रुकते हैं, कल के लिए आपको छुट्टी रहेगी, कल लेक्चर नहीं होगा। थैंक यू, नमस्कार।